It is for the third time when the elected councillors of the Municipal Corporation of Delhi will gather again here at the Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre. The main agenda for today is the election of mayor as well as the members of standing committee. Both the Aam Aadmi Party as well as the BJP had levelled allegations at each other last time on 24 January for trying to stall the proceedings of the House. Will Delhi get a mayor today? That's the question on top of everyone's mind since it's been almost 2 months when the results of MCD elections were declared way back in December. What would be the floor strategy for AAP councillors and leadership today? Previously twice the house was adjourned and the mayoral elections have been deferred, and this time we are expecting smooth functioning inside, and we are expecting that the presiding officer will conduct the elections in the constitutional manner and as per the DMC Act. इसमें कोई स्ट्रैटेजी ढूंढे, उसको कोई रूप दे या उसके कारण से कोई यहाँ पे मिस हैपनिंग हो, वो हम चाहते ही नहीं है। दिल्ली को उनका मेयर, डिप्टी मेयर मिलना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली के काम रुके हुए हैं और दिल्ली की जनता का जो हर्जा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम तो हर बार आते हैं अपने मेयर के लिए वोटिंग करने के लिए। आज भी यही है कि बड़ी उम्मीद से आए हैं सदन में, और आज उम्मीद है कि भाजपा अपनी करतूतों से बाज आएगी और लोकतंत्र का सम्मान करेगी और एमसीडी को चलने में और हमारी सरकार बनाने में थोड़ी सी मदद करेगी और जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चीज़ें हैं उसको चलाएगी। One of the objections raised by AAP leaders last time was that the presiding officer shared the list of voters. Would you stay adamant on that demand today as well? Definitely, we are expecting that the presiding officer won't allow the nominated councillors to cast their vote inside the house, because as per the act and the constitution, they are not allowed to cast their vote inside. Presiding officer will do what is writing in the MCD Act 1957. आई थिंक कि उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और अभी तक भी जो हुआ है वो MCD एक्ट के अनुसार ही हुआ है। At 10 a.m., as the councillors from the BJP as well as the Aam Aadmi Party have begun to arrive here at the Civic Centre, you can see that the security personnel here are also in standby mode as the proceedings are about to begin at 11 a.m. The numbers as we speak, they stand in favor of the Aam Aadmi Party. The party is actually counting on 151 votes. That includes their councillors as well as 13 MLAs and 3 MPs. The BJP currently for the position of mayor has 113 votes in their favor. That includes their councillors as well as 7 MPs and 1 MLA. जो एल्डरमैन हैं उनको लेकर शुरुआत से ही बहुत विवाद बना हुआ है। उनको वोटिंग का अधिकार है मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, इस पर थोड़ा सा बताएं। माननीय राज्यपाल जी के पास पावर्स हैं और संविधान के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने के लिए कहीं बंद नहीं है तो ओपन भी नहीं है, तो उनको राइट्स हैं और उनको राइट्स मिलने चाहिए सबको जो है जी। सभी पदों पर समान अधिकार हैं एल्डरमैन के। अगर उनको दिक्कत है तो कोर्ट में चले जाए, क्यों नहीं कोर्ट में से वापस आ गए। जब पार्टी बार बार कह रही है एल्डरमैन को पूरा अधिकार है, एल्डरमैन को जो जितने पार्षद को अधिकार है बजट को छोड़ के सारे अधिकार एल्डरमैन के पास है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आर्टिकल 243R ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स म्यूनिसिपल लेवल पर वोट नहीं डाल सकते। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, अभी उन्होंने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है। वो जानते हैं, समझते हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे तो उनका हारना निश्चित है। You will favor that aldermen be also allowed to vote for all positions? Yes, it's a constitutional decision। आप 1957 का जो DMC एक्ट है उसमें पूरी तरह से लिखा है, और ओनिका मल्होत्रा वर्सेस MCD जी का केस जो था 2016 का, उसमें भी डेफिनेटली पूरा क्लियर है कि आपका एल्डरमैन है, वोटिंग करेंगे। हम तो भारत के संविधान में दिए हुए प्रावधानों का बचाव कर रहे हैं कि उनके साथ खिलवाड़ ना हो, और अगर आज भी एल्डरमैन अगर वोटिंग का राइट अगर पीठासीन अधिकारी उन्हें देते हैं तो ये असंवैधानिक प्रक्रिया होगी, जिसका हम सदन के अंदर ही नहीं बाहर भी विरोध करेंगे, क्योंकि हमें हमारे संविधान को बचाना है।
बीजेपी दिल्ली नगर निगम सदन में नामांकित सदस्य अर्थात एल्डरमैन, नामांकित राज्यसभा लोकसभा सदस्य, नामांकित विधायकगण, चुने हुए पार्षदगण महापौर चुनाव में मत करेंगे। आपने एक हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला दिया, ये तीन हाईकोर्ट की जजमेंट है, सिंगल बेंच की 2 जजमेंट, डबल बेंच की हाईकोर्ट की जजमेंट 2016 की, जिसके अंदर क्लियर रूप से कहा गया है कि एल्डरमैन वार्ड कमेटी के अंदर वोट डालने का अधिकारी है, सदन के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर वो वोट डालने का अधिकारी नहीं है। मेयर का चुनाव होने दो। कोर्ट के ऑर्डर से तो करप्शन के इन्वॉल्व किसी भी व्यक्ति को वोट करने का अधिकार नहीं है। जो भी सदन के मेंबर नहीं है वो सदन में नहीं रह सकते। आप बाहर जाइए। आप सभी लोग outside the civic center again as the AAP leaders and volunteers here are continuing to shout slogans against the BJP. There is heavy deployment of security personnel as well as the BJP MPs are trying to get out of the civic center. मेयर के लिए वोट करने के लिए तो ऐसे क्रिमिनल लोग आम आदमी पार्टी के वो हाउस में नहीं होने चाहिए थे, मगर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने उन दोनों को हाउस में बुलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली के अंदर विकास हो, दिल्ली की जनता चाहती है कि कूड़े का पहाड़ खत्म हो, दिल्ली की जनता चाहती है सफाई हो, पर बीजेपी के यहाँ निगम पार्षद और बीजेपी के सांसद ये नहीं चाहते कि दिल्ली का विकास हो। हमारा संविधान तो सभी को राइट देता है, ये तो चुने हुए नुमाइंदे हैं। आम आदमी पार्टी को भी चाहे चोर हो, साहूकार हो, कोई सजा याफ्ता मुजरिम हो, उसको भी वोटिंग राइट देता है। ये दिल्ली में 7 सांसद बने, 7 ने आज तक कोई विकास नहीं करा, ना विकास गिनवा पाते। हमेशा चुनाव लड़ते हैं धर्म के में। एमसीडी चुनाव भी इन्होंने धर्म पर लड़ा, पर सफाई कैसे होगी? झाड़ू तो कर्मचारी चलाएगा ना, गन तो कर्मचारी उठाएगा। जब तक हमारा मेयर नहीं बनेगा, हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, हम चुनी हुई सरकार है, हम पावर में मजबूत है, हम नंबर में मजबूत है। आप क्यों नहीं चाहते कि हमारी सरकार बने? अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट में जाइए, लेकिन ये तो बिल्कुल बचकाने वाली हरकत है कि नहीं जी इनके ऊपर तो करप्शन के इल्जाम है। तो ये आप देखिए खुलेआम दादागिरी हो रही है। एलजी साहब इन्हें भेज देते सिखा के, दिल्ली के सांसद आते हैं यहाँ ड्रामेबाजी करते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। तो भाषणबाजी से विकास नहीं होगा, भाषणबाजी से विकास नहीं होगा, सरकार बनने से, मेयर बनने से ही विकास होगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उनके सभी विधायकों को नगर निगम द्वारा इनवाइट भेजा गया था, तो उनके वोटिंग राइट्स ऐसे कैसे छीन सकता है? उनको अपना पक्ष रखना चाहिए ना। पक्ष रखने की बजाय आप वहाँ पर हल्ला करके भागने की बात कर रहे हैं, पक्ष अपना न करे, या तो तुम्हें जानकारी नहीं है। अगर वहाँ पीठ ने ये रखा है कि वो 2 विधायक मतदान नहीं करेंगे तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए ना कि आप पक्ष रख नहीं रहे और जबरदस्ती डलवाएंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। अगर कोई लग रहा है कंडीशन ऐसी है जिसके कारण से वो बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए पक्ष रखना चाहिए। इनके पास विषय नहीं है कोई, और विषय नहीं होने के कारण ये हाउस बार बार जा रहा है और जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा है। बार बार आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहना और ये सदन को भंग करना कि उसमें एल्डरमैन वोट नहीं डालेगा, ऐसा कोई भी एक्ट में नहीं लिखा। इसके ऊपर में एक्ट एकदम साइलेंट है, इसलिए वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे इस बात का फैसला पीठाधीश अधिकारी करेगा, ना कि आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे। With the position of mayor still lying vacant, it is the people of Delhi who will continue to suffer. One must understand that until 24 January, when the oath-taking ceremony had not taken place, the councillors didn't have the right to even sign on certain papers. Now that they are designated councillors but do not have a mayor, it means that funds cannot be allocated for certain projects. And therefore, the much publicized promises that were made to the people ahead of MCD elections continued to remain unfulfilled. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video
सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री एंड पे टू कीप न्यूज फ्री और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।